Good morning, dear students. I hope you all are doing well this morning. So, in the previous sessions, we studied few topics like charging by rubbing. We discussed charges, right? We also discussed the types of charges and their interaction, positive charge, negative charge. We studied like charges repel each other, okay? Means like same charges. Like charges means negative charges or positive charges repel each other. Similarly, we studied about unlike charges attract each other like positive and negative charges. Then charges acquired by different objects. We know that different objects consist of different charges, and then we also studied about frictional order. Means frictional order in the sense, in the first only I explained you about the comb and different objects which consist of the charges, positive charge, negative charge. Okay, we studied about the electroscope. Okay, electroscope is a device that used to test that whether an object possessed a charge, electric charge or not. Similarly, we studied about transfer of charge, we studied electric discharge. Okay, we studied about lightning process, we studied the whole phenomena, how lightning is occurring, and protection from lightning and thunderstorm is a new topic. Let me get you some of the basic idea on it. Okay, so let's start. Protection from the lightning and thunderstorm. If you are outdoor means if you are out of your house, then open vehicles like motorbikes, truck, open car are not safe. Okay, so open field, park, elevated place, tall trees are also not safe. You should not stand there. Carrying an umbrella is not safe. If in a forest, take shelter under short trees, that is also not safe. Means whenever you are out, okay, you are not safe. In short, if in an open field, stay away from the trees, poles, metallic objects. Do not lie down, squat on the ground with hands on the knees. Squat means paloti, okay, on the ground with hands on the knees and the head between the heads. Okay, sit down, keep your head between your two hands and bend it with the knees, right? Next, if you are inside the house, lightning can strike electric wires, telephone cords, and metal pipes, so contact with these objects should be avoided. Means whatever the metal consisting objects are there, you have to avoid using them. You have to be straightforward, maintain distance between them. It is safer to use mobile and cordless phones that than wired phones. Cordless phone means वायर बिना के जो phones होते हैं ना, like whatever the mobile phones we are using, cordless, which does not consist of wires. Why? Because why your wire is so deeply initiated, because wire consists of metal, right? Metal generally attracts by the lightning. ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक टीवी, कंप्यूटर शुड ऑल्सो बी अनप्लग्ड. प्लग निकाल देना चाहिए बिकॉज शॉर्ट सर्किट ना हो जाए. सो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. सो वाटर के कॉन्टैक्ट से भी दूर रहना चाहिए. देखिए ऐसे, इन दिस पोजिशन यू हैव टू सिट व्हेन लाइटनिंग इज देयर. ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं, हाउ यू कैन सर्वाइव इज इन दिस वे. नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स लाइटनिंग कंडक्टर, लेट अस टॉक अबाउट द कंडक्टर. आई होप यू ऑल आर वेल नोन अबाउट द कंडक्टर, राइट? कंडक्टर कौन से होते हैं? जो मेटल्स के जनरली होते हैं वो. अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग. लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? लाइटनिंग से डैमेज ना हो बिल्डिंग, इसीलिए वो एक डिवाइस है जो वी आर यूजिंग.
अ लाइटनिंग कंडक्टर हैज़ अ मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड होता है लाइटनिंग कंडक्टर में. लेट्स सी okay, see, here is a rod, right? Here rod is there, metallic rod. The upper end is pointed and the lower end is joined to the metal plate. upper end pointed है, देखिए यहाँ upper end यहाँ point थोड़ा सा pointed है. Wait a second. यहाँ upper end pointed है, right? And the lower end is joined to the metal plate. यहाँ बेस पे, ठीक है, मेटल प्लेट पे जॉइंट है. एंड बरीड अंडर दी ग्राउंड. ये एक सेकेंड. When lightning strikes, the electric charges pass through it to the earth without causing any damage to the building. अब देखिए यहाँ बिल्डिंग है, राइट? हियर इज बिल्डिंग, हियर इज द बिल्डिंग, ठीक है. यहाँ एक रॉड कनेक्टेड है, सी द केबल वायर. तो जो भी लाइटनिंग कॉज होगी, ठीक है, यहाँ लाइटनिंग आई है तो ये पाथवे के थ्रू वो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और बिल्डिंग पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है. लाइटनिंग रॉड है, फिर लाइटनिंग रॉड माउंट बेस है, मतलब कि जो मेटल बेस था वो. फिर कॉपर केबल है जिसके थ्रू केबल का जो स्ट्रैप होगा ना, वो स्ट्रैप के थ्रू क्या होगा, मीन्स दिस केबल स्ट्रैप इज़ देयर, राइट. ये केबल स्ट्रैप के थ्रू ग्राउंड के लेवल है, ग्राउंड रॉड है, वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा. वो ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो होके डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफ़र होगी, बिल्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसीलिए, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक? If we talk about earthquake, right? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by disturbance deep inside the earth crust. earth crust मतलब अर्थ के नीचे, ओके. ग्राउंड में बहुत सारे प्लेट्स होती है. प्लेट्स में जब शेक होता है, राइट, वेन एवर द प्लेट्स आर शेक्ड वो स्लिप हो जाती है और अर्थ ट्रेम्बल होगी, मीन्स मूव होगी, शेक होगी. तो उसके थ्रू जो क्रैक्स पड़ते हैं रोड्स पे या हाउसेस के वॉल्स पे, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट दैट इज़ द नेचुरल फिनोमिनन शोन बाय द अर्थक्वेक, ठीक है. अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज. इट कैन कॉज लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड मतलब जो भी पत्थर जैसा होता है ना, ये है ना एक टाइप का लैंडस्लाइड है, मीन्स वॉट एवर द माउंटेन एरिया का जो मास नीचे पूरा गिर जाता है, दैट इज द कॉज फॉर लैंडस्लाइड. फ्लड एंड सुनामी. इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ह्यूमन की लाइफ में और प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, ओके. वॉट एवर अवर लाइफ इज देयर, समटाइम्स we die because of that. And property means our household material, जो भी हमारा घर की चीज़ें होती है वो सब, ओके. ब्रिज है, डैम्स है, बिल्डिंग्स है, वो सब डैमेज हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से, ओके. हाउ, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है. बाहर का जो लेयर होता है अर्थ का उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इज नॉट अ पीस, ये कोई पीस नहीं है, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रैगमेंट, ठीक है. जैसे अगर बात कर लूँ, ये ऑब्जर्व दिस, ठीक है, ये अर्थ है. तो ये जो आउटर लेयर की बात की है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, राइट. When these plates brush past, sorry यहाँ नहीं था, it is
इट इज़ फ्रैगमेंटेड इनटू मैनी प्लेट्स। अब जो क्रस्ट का लेयर है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है। दीज प्लेट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली। जब ये प्लेट्स कंटिन्यूसली रिमूव होते हैं, व्हेन दीज प्लेट्स ब्रस्ट पास्ट ईच अदर और व्हेन वन प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट ड्यू टू कोलिजन, दे कॉज डिस्टर्बेंस एंड कॉज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कब होता है? जैसे ये प्लेट्स है, कंसिडर करो, राइट, दीज आर प्लेट्स। अब ये प्लेट्स का क्या होगा? व्हेन दीज प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएगी या तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कोलॉइड, कोलिजन और कोलाइड का मीनिंग क्या है? भटकाऊ, एक दूसरे से भटकाना, उसको कोलाइड कहते हैं। तो जब एक ऊपर नीचे की प्लेट्स कोलॉइड होने लगती है तब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अर्थ के ग्राउंड में या अर्थ के जो या क्रस्ट लेयर है ना उसमें। तो दैट कॉज एन अर्थक्वेक। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक। जो बाउंड्रीज होती है वो वीक होती है। वो वीक जोन में जनरली उसे कहते हैं सिस्मिक जोन या तो फॉल्ट जोन। वो सिस्मिक जोन में क्या होता है? वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। सी, ये जो प्लेट्स आपने देखी सी में, प्लेट्स का क्या हुआ? मूव हो गई, राइट, एक इस तरफ चली गई एक उस तरफ, मीन्स ये कोलॉइड हुआ है, एक दूसरे से अलग जा रही है, ओके, एक दूसरे से भटका रही है। दिस इज ऑल्सो वे जिसमें क्या होगा, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्शन में आ रही है, तो प्लेट्स का क्या होगा? जनरली ब्रेक होगा यहाँ। तो प्लेट्स जब ब्रेक होगी तब उसमें क्या होगा? सिस्मिक जोन में उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका पोजीशन वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो द सेम, प्लेट्स दूर जा रही, तो जब प्लेट्स मूव होगी तब यहाँ वो आपने क्रैक्स देखे होंगे। क्रैक्स क्यों होते हैं? जनरली प्लेट्स आर मूव्ड in the opposite direction. So the seismic zone in India are Kashmir. Seismic zone means जहाँ की प्लेट्स जो होती है वो वीक जोन होता है या तो फॉल्ट जोन होता है, तो वो जनरली कश्मीर, हिमालयस, इंडो गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कच्छ, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ जनरली होता है। ओके, जनरली सिस्मिक जोन दैट इज फॉल्ट जोन और द वीक प्लेट्स होते हैं, इसीलिए इन रीजन्स में अर्थक्वेक का ज़्यादातर हमें कॉज दिखता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? कितने अमाउंट में या कितने पावर में, ओके, अर्थक्वेक एज ए डिजास्टर तरीके डिस्ट्रक्ट हुआ है, तो वो मेजर कौन करेगा? रिक्टर स्केल। वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड्स मोर देन 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल। अभी तक का 7.5 जनरली मैग्नीट्यूड तक दिखा है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ है। ओके, अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स मतलब जो वेव्स दैट इज क्रिएटेड, जब अर्थक्वेक आती है तब वेव्स मीन्स वी आर मेजरिंग, ठीक है, कितने अमाउंट पे वेव्स क्रिएट हुई है अर्थ के सरफेस पे, ओके, तो दैट वी आर मेजरिंग बाय द सिस्मिक वेव्स दैट आर क्रिएटेड। तो जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, जैसे हमें पता है कि हमारी हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट को हमें मेजर करना है, जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करेगा हमारी हार्ट बीट को उसे हम ईसीजी कहते हैं, राइट। तो वैसे ही सिस्मिक वेव्स को जो रेगुलेट करता है, रिकॉर्ड करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ कहेंगे। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म। सो दीज आर द रीजन्स वेर हम जहाँ हमें अर्थक्वेक का दिखने को मिल रहा है, सीधी लाइनिंग्स, ठीक है, जो लाइनिंग्स आपको दिख रही है, देयर वी कैन सी द अर्थक्वेक का जो कॉज हुआ है वो। ओके, कौन कौन से सिस्मिक जोन है वो भी इसमें दिया है, यू कैन गो थ्रू। कोई इसमें आपको कोई बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर दी विजुअलाइज पर्पस के लिए मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे? द बिल्डिंग्स इन द सिस्मिक जोन्स
The buildings in seismic zones should be designed such that they can withstand tremors due to earthquake. तो जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो जो एरियाज में सिस्मिक जोन में, जो हमने ऊपर के अभी स्टेट्स की बात किए थे ना, तो वो जोन्स में जनरली बिल्डिंग्स जो ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए जो जब अर्थक्वेक आए तब वो विथस्टैंड कर सके. विथस्टैंड मीन्स कोई भी अर्थक्वेक पे वो रह सके. मीन्स जब अर्थक्वेक आए तब उससे कोई हानि ना हो, उससे कोई डैमेज ना हो. मटेरियल्स लाइक मड, वुड, लाइट रूफ शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैवी मटेरियल्स. हैवी मटेरियल्स क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए? जनरली वो गिर जाते हैं. वेन वी यूज़ दिस मड एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कपबोर्ड्स है, हीटर्स है, ठीक है, वो हम जब वॉल पे लगाएंगे तो उनका डैमेज ज़्यादा होगा. इसीलिए वेरी लाइट ऑब्जेक्ट शुड बी यूज, लाइक मड है, वुड है. लाइट रूफ रखनी चाहिए जो बिल्डिंग्स के रूम की होती है, जिसके थ्रू क्या डैमेज जनरली कम कॉज होगा. हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक कपबोर्ड्स, हीटर्स शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन दी वॉल्स. वॉल्स पे हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए. ऑल बिल्डिंग्स शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मीन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. इफ़ यू आर एट होम, अगर हम घर पे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल. टेबल के नीचे हमें शेल्टर लेना चाहिए. इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप. प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो. क्यों? क्योंकि जनरली अगर हमारा कुछ भी हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारी बॉडी को जनरली बहुत रेयर केस में इंजरी होती, लेकिन वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर हेड, क्योंकि अगर हेड को ही अगर डैमेज हो जाएगा देन जनरली कोमा के चांसेस हो जाते हैं. ओके, सो द सर्वाइवल इज जनरली फ्रॉम द हेड रीजन. Stay away from tall and heavy objects which may fall on you. ठीक है. If you are outdoor means घर के बाहर हो, तो find an open area away from building trees है, power lines है, या तो electric lines है, ठीक है, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि गिरने के चांसेस रहते हैं. और ग्राउंड पे लाई करना चाहिए. ओके, लाई डाउन ऑन द ग्राउंड. If you are in a car or bus, ask the driver to slow down and don't get out till the tremor stops. Tremor means जब तक डिज़ास्टर स्टॉप नहीं हो जाता. अर्थक्वेक की मीन्स सिस्मिक एक्टिविटी या तो शेकिंग जो है, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आपको कार के बाहर या तो कोई भी व्हीकल के बाहर निकलना नहीं है. ओके, दीज आर द डिज़ास्टर के पिक्चर्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है. नेक्स्ट ये जनरली लैंडस्लाइड का है. ओके, जनरली रोड का जो लैंड मास है जो गिर जाता है. क्यों? क्योंकि अंदर के जो प्लेट्स होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है. ये सुनामी का पिक्चर है. हाउ सुनामी वर्क. ओके, सुनामी कैसे होती है? जब ये देखिए फॉल्ट लाइन. ओके, ये फॉल्ट लाइन क्या था? हमने कहा था सिस्मिक जोन, राइट. वी स्टडीड अबाउट द सिस्मिक जोन. जब ये कॉज फॉल्ट लाइन कॉज करेगी दिस, तो उसमें क्या होगा? जब ये वाला ऊपर जाएगा और ये ऐसे साइड में, एक वेव्स ऊपर जाएगी और एक साइड में जाएगी, तब क्या जो वाटर का लेवल है वो राइज होगा. तो राइज होगा, अपवर्ड वेव में मूव करेगा, तो वेव्स विल बी मूविंग दी टू डायरेक्शनल वेव्स, राइट. तो ऐसे ही सुनामी आएगा. ये है सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ का जनरली आपको कोई ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है. जस्ट यू रिमेंबर कि सिस्मोग्राफ क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करेगा सिस्मिक वेव्स को. ओके. ओके, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जैसे जो वर्क करेगा. ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज गेटिंग ओवर. सो इसमें आपको कोई भी डाउट्स हैं देन आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन, उसमें आप पूछ सकते हैं. ओके, सो हियर आवर चैप्टर 15 गेट्स ओवर. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 14. केमिकल इफेक्ट्स वाला स्टडी करेंगे. उसमें आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी केमिकल के रिलेटेड. उसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस स्टडी करने वाले, इफेक्ट स्टडी करेंगे. ओके, टिल दैट स्टे सेफ, stay healthy. Thank you.